اس کے بعد خبر شامل کریں گے سابق وزیراعظم کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی نیب راولپنڈی میں پیشی۔ نیب نے اعظم خان کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں طلب کیا تھا۔ نیب حکام نے اعظم خان سے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی نیب راولپنڈی میں پیشی۔ نیب نے اعظم خان کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں طلب کیا تھا۔ نیب حکام نے اعظم خان سے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ اعظم خان نیب دفتر سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ اعظم خان نے نیب حکام کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل، اعظم خان کی نیب دفتر میں پیشی۔ نیب حکام کی اعظم خان سے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اعظم خان نے نیب حکام کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور اعظم خان نیب دفتر سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی نیب راولپنڈی میں پیشی۔ مزید جانتے ہیں ثاقب سید سے۔ جی ثاقب۔ جی بالکل، سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان نیب راولپنڈی ملوی دفتر میں پیش ہوئے۔ اعظم خان نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ نیب کی جانب سے اعظم خان کو پہلے بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان 2.5 سے 3 گھنٹے تک نیب راولپنڈی میں موجود رہے اور مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے اعظم خان کو تحریری سوالنامہ بھی دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعظم خان سے سوال کیا گیا کہ کیا کابینہ اجلاس میں NCA کا خط کسی کو دکھایا گیا اور چیئرمین PTI سے اس خط کے حوالے سے کیا کہا گیا۔ اعظم خان چند روز میں ان سوالات کے لیے جوابات جمع کرائیں گے۔ جی، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت 5 مقدمات میں جلاؤ چیئرمین تحریک انصاف کی عبوری ضمانت میں 8 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ JIT نے چیئرمین PTI کو قصوروار قرار دے دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں 5 مقدمات میں چیئرمین تحریک انصاف کی عبوری ضمانت میں 8 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ JIT نے چیئرمین PTI کو قصوروار قرار دے دیا۔ پولیس کی جانب سے بھی تفتیش مکمل کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے اسپیشل پروسیکیوٹر فریاد علی شاہ نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین PTI تفتیش میں قصوروار قرار پائے ہیں، جبکہ اسپیشل ڈیوٹی جج نے عبوری ضمانتیں 8 اگست تک توسیع کر دی ہے اور وکلا آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کے خلاف تھانہ سرور روڈ، گلبرگ، شادمان سمیت دیگر پولیس اسٹیشنز پر مقدمات درج ہیں۔ چیئرمین PTI کے خلاف جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور شادمان پولیس اسٹیشن پر حملے کے الزامات بھی مقدمات درج ہیں۔ ملک کے ایئرپورٹس فروخت نہیں کر رہے، انہیں ٹھیکے پر دے رہے ہیں۔ کوئی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا، اس حوالے سے کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اداروں کے ڈوبنے کی وجہ گندی سیاست ہے۔ بہتری نہ آئی تو PIA 1-2 سال میں بند ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کھانچے چلتے رہیں تو یہ ملک نہیں چلنا۔ یہ پہلا پاکستان کا ایئرپورٹ ہوگا جو آؤٹ سورس ہوگا اور وہاں پہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر لاہور اور کراچی کی باری آئے گی۔ تو یہ وہ کام ہے جو پوری دنیا کر چکی ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سٹون ایج میں رہنا ہے یا آگے جانا ہے، اور اگر آپ نے PIA کو ریسٹرکچر نہیں کیا 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں۔ ہم اس راستے پہ ڈال کے جائیں گے، آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی۔ تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، کوئی بے روزگار نہ ہو، کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے، اور اگر کوئی ناراض ہوتا تو اس کو ہونے دیں، مگر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بچائیں۔ ان کو آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں بشرطے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، میرٹ پہ آئے، شفافیت کے ساتھ آئے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے۔ خزانہ اسحاق ڈار نے IMF معاہدے کی دستاویزات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ خطاب میں کہا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ لائبریری کو بھی دستاویزات بھجوا رہے ہیں۔ تمام دستاویزات وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ تفصیلات بتانے کے مقصد شفافیت ہے۔ ملک میں جو بھی اہم تبدیلیاں ہوں وہ پارلیمنٹ میں شیئر کرنی چاہیے۔ زراعت اور تعمیرات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ گزشتہ حکومت کے ناقص پالیسیوں سے ملک کو نقصان پہنچا۔ گورنر اسٹیٹمنٹ سائن کریں گے، میں اس کو اس ہاؤس میں کاپیز پلیس کروں گا تاکہ ہمارا کوئی بھی ساتھی اگر اس کو دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے۔
ये प्रैक्टिस मैं समझता हूं कि शफाफियत इसको डिमांड करती है कि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो मुल्क में वो अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में उसको शेयर करना चाहिए। मुल्की ज़खायर जो थे वो करीबन 14 बिलियन के करीब थे। मेरी ये हमारे जब हम पेमेंट्स करते गए और हमने ये फैसला किया कि हमने कोई सॉवरन पेमेंट हमने वक्त पे जरूर करनी है और कोई उसमें डिले नहीं होनी, कोई डिफॉल्ट नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। उसके बावजूद और उसकी वजह से एक पॉइंट वो आया कि जहां हम नेशनल रिजर्व जो थे हमारे करीबन 8 बिलियन के करीब चले गए चंद महीने पहले, वो हमने बिल्ड करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो क्लोज हुआ है हफ्ता जुमे वाले दिन पिछला, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ज़खायर अक्टूबर 22 के बाद पहली दफा दोबारा $14 बिलियन में पहुंच चुके हैं। चूंकि एक अफवाह चली और मैंने करीबन दर्जन अखबारों में पिछले चंद रोज में पढ़ा, IMF मुआहिदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाया जाए। सर आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं ये कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं, जितने हमारे प्रायर एक्शन थे वो हमने डिलीवर कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी अता तालड़ ने कहा है कि तोशा खाना का केस चोरी का केस है जिसमें मजीद भागने की गुंजाइश नहीं। किसने कहा था कि तोहफे बेच दें और उसका रिकॉर्ड ना रखें? चेयरमैन PTI को अदालत में आकर जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI पर जुर्म साबित हो चुका है। भागने और तारीखें लेने से आप बच नहीं सकते। दलील दी जाती है कि बाकियों ने भी तोशा खाना से तहफ़ लिए। तो अब जब क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है उसमें क्या दिक्कत है? केस मेरिट पे आर्ग्यू क्यों नहीं होता? और न्याजी साहब अदालत में खुद आने की ज़हमत क्यों नहीं फरमाते? हर केस टेक्निकलिटी के ऊपर दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दो, डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कर दो, जज पे अदम एतमाद कर दो। आज तक इन्होंने कोई एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि हम तोहफों का जवाब देते हैं, हम बताते हैं कितने तोहफे लिए थे? एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि जो तोहफे बेचे थे उन तोहफों से जो रकम मौसूल हुई थी वो कहाँ पे गई और वो कितने के बेचे थे? एक मौका मुझे बता दें कि इमरान नियाजी अदालत में आया हो। ये 1 साल होने को आया है, ये तोशा खाना का केस चल रहा है। एक दफ़ा वो अदालत में आए हैं और वो तब आए हैं जब वो गिरफ्तार किए गए थे। तो ये तोशा खाना के केस में जो गैर हाज़िरी है और जो वो पेश नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, रसीदें जाली हैं। हमें कहते थे रसीदां कड्डो, हमने तो रसीदें निकाल दी, हम सुर्खरू भी हुए, हमने जाली रसीदें नहीं बनाई आपकी तरह। पहले दिन से कह रहे हैं साइफर एक ड्रामा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार के नशे में मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। साइफर का मकसद पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलना है। उस शख्स ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। सर रिसेंटली 2 दिन पहले जो फिर वो बात आई है कि उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं साइफर के मामले में। सर मैं समझता हूं हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये साइफर का एक ड्रामा है। उस ड्रामे का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को पर पूरी दुनिया को के सामने झूठ बोलना है। और एक ही वाक्य के 2 नैरेटिव पेश करने की कोशिश की इमरान खान ने, एक ही वाक्य के 2 नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अवाम को बोला कि मुझे फला मुल्क की वजह से हटाया गया है ताकि यहां के मुल्क में, यहां के लोगों में नफरत पैदा उस मुल्क के खिलाफ। उसने दाव पे लगाया हमारे फॉरेन रिलेशनशिप को, उसने दाव पे लगाया हमारी कौमी सलामती को, उसने मुल्क के इंटरनेशनल ताल्लुकात को दाव पे लगाया सिर्फ अपनी हवस में, उस कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी के नशे में, उस इक़्तिदार के नशे के लिए उसने ये सारी चीजें दाव पे लगाई। और इंटरनेशनल लोगों को कहता गया कि हम इदारों पर उसने इल्जाम लगाए कि हमारे मुल्क के इदारे जो है उन्होंने उसको हटाया या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी ने हटाया। तो इससे बड़ा झूठ इससे और कोई नहीं सामने आ सकता। जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा ना रहा ना होगा। भारत ख्वाब देखना छोड़ दे।
गोवा में भारत ने पहल की, उसे SCO में सियासत को नहीं लाना चाहिए था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान स्वीडन में इस्लामोफोबिया और तौहीन कुरान के बार बार होने वाले वाक़यात की मजम्मत करता है। और सिटी कोर्ट कराची ने स्मगलिंग केस में बरामद किए गए 14 बंदरों को चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर की बंदरों को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। अदालती हुक्म पर एक बंदर को चिड़ियाघर इंतजामिया की तहवील में दे दिया गया है। सिटी कोर्ट लाए गए बंदरों में से एक दरख्त पर चढ़ गया। अदालती अमले की निशानदही पर महकमा जंगली हयात के अमले ने बंदर के बच्चे को पकड़ लिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि तहवील में लिए गए बंदरों को सिटी कोर्ट कराची में लाया गया। सिटी कोर्ट कराची ने स्मगलिंग केस में बरामद किए गए 14 बंदरों को चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। तफ्तीशी अफसर की बंदरों को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालती हुक्म पर एक बंदर को चिड़ियाघर इंतजामिया की तहवील में दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत करते हुए आगाह किए बगैर मुल्जिमान का ट्रायल शुरू न करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर वाज़ेह किया कि कोई ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा। मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन ही केस का फैसला करेगी। मुल्क में अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल कभी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई वाकयात और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से दलाइल देते हुए कहा कि सिविलियन दफाई काम में रखना डाले तो आर्मी एक्ट के निर्गे में आता है। अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी उसी कानूनी दायरे में आता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। अफवाज का डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या कानून से अखज किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि किसी फौजी का झगड़ा किसी सिविलियन से हो तो ट्रायल कैसे होगा। चीफ जस्टिस बोले फौजी अदालत फैसले के खिलाफ किसी आजादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हकूक की जमानत है। अटॉर्नी जनरल ने अपील का हक देने के मामले पर 1 माह की मोहलत देने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1 महीने की मोहलत देने से मुतल्लिक आपस में मशावरत करेंगे। अदालत ने जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील लतीफ खोसा के हुक्म इम्तना की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज का दे। लतीफ खोसा ने ज़िया दौर का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मार्शल जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। महंगाई में गैर मामूली इजाफे के बावजूद पाकिस्तानियों की अय्याशियां बरकरार। जून 2023 में पाकिस्तानियों ने 5 करोड़ 36 लाख डॉलर के मोबाइल फोन्स दरामद किए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तानियों ने 57 करोड़ डॉलर के मोबाइल दरामद किए। इस्लामाबाद से इदारा शुमारियात की जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में गैर मामूली इजाफे के बावजूद पाकिस्तानियों ने जून 2023 में 5 करोड़ 36 लाख डॉलर के मोबाइल दरामद किए। मई 2023 में पाकिस्तानियों ने 4 करोड़ 32 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल सेट्स बरामद किए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तानियों ने 57 करोड़ डॉलर के मोबाइल फ़ोन दरामद किए। सालाना बुनियादों पर मोबाइल के दरामदी बिल में 71% कमी हुई। माली साल 2022-23 में टेलीकॉम सेक्टर का दरामदी बिल 96.7 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता एक साल में 39 करोड़ डॉलर के मोबाइल पुर्जे दरामद किए। माली साल 2021-22 में पाकिस्तानियों ने 1.97 अरब डॉलर के मोबाइल दरामद किए थे। और पाकिस्तान की होनहार तालिबा बिस्मा सोलंकी का बड़ा कारनामा, ड्राइवर्स की हिफाजत के पेश नज़र मुनफरिद चश्मा तैयार कर लिया। ड्राइवर्स अगर गाड़ी चलाते वक्त सो जाएं तो ये चश्मा उसकी निशानदही करेगा। ये कारनामा बिस्मा सोलंकी ने अपनी टीम के साथ मिलकर अंजाम दिया है। बिस्मा की इस काविश से मुतासिर होकर उन्हें अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानिब से मदऊ किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा की दावत पर बिस्मा सोलंकी और दीगर तालिबात कराची एयरपोर्ट से अमरीका के लिए रवाना हुई। 13 साला बिस्मा सोलंकी का ताल्लुक जिला सांगढ़ के गांव फिदा हुसैन डेरो से है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।